السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ نیچے اترو، کیا کر رہی ہو تم وہاں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ سمر نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا جو بھری دوپہر میں آم کے پیڑ پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور آم توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابرش نے آم کے پیڑ کی ٹہنی کو اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھا، جہاں سمر آفندی کھڑا حیرانی سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سمر کو دیکھ کر ابرش یکدم ہی پریشان ہو گئی۔ وہ اس وقت دوپہر میں یہاں کیسے آ گیا تھا؟ اس وقت گھر کے سب مکین اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، اس لیے ابرش موقع غنیمت جان کر لان میں آم کے پیڑ پر آ گئی تھی۔ سمر کو دیکھ کر وہ بے اختیار ہی پریشان ہوئی۔ سمر لالا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو آفس میں ہوتے ہیں۔ ابرش نے پریشانی سے اس سے سوال کیا۔ اترو فوراً سے نیچے، تم پاگل ہو گئی ہو جو اس وقت درخت پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی ہو؟ سمر کو اس کے پاگل پن پر غصہ آیا۔ سمر لالا، مجھے کیریاں کھانی تھی، اس لیے میں وہ لینے آئی تھی۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے اپنی خجالت مٹاتے ہوئے کہا۔ نیچے آؤ فوراً، سمر نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ اسے شروع سے ہی اس لڑکی کی حرکتوں سے چڑ تھی، اور ابرش کو بھی وہ سارے کام کرنے کی عادت تھی جسے سمر چڑا کرتا تھا۔ ابرش کے دونوں ہاتھوں میں کیریاں بھری ہوئی تھی، مگر وہ ان کیریوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں کیریاں تھامے آہستہ آہستہ درخت سے اترنے لگی، مگر جانے کہاں کیسے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ اتنی اونچائی سے زمین پر گرتی، اس کے ہاتھوں سے ساری کیریاں چھوٹ گئی۔ سمر فوراً ہی اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور اس نے ابرش کو اپنے بازوؤں میں تھاما۔ ابرش اس کی باہوں میں آ کر گری تھی اور اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ سمر کا جی چاہا وہ اسے وہیں پھینک کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے۔ ابرش نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بھینچ لی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ زمین پر گر کر اس کی 2-4 ہڈیاں تو ٹوٹ ہی جائیں گی، مگر جب اس نے خود کو سمر کی باہوں میں محسوس کیا تو پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور بے یقینی سے سمر کو دیکھنے لگی، جبکہ سمر کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ابرش کی بارونق آنکھیں سمر کے چہرے پر جمی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں مت کیا کرو، مگر تمہارے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ اگر ابھی تم نیچے گر جاتی اور چوٹ لگ جاتی تو؟ سمر آفندی اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اس پر بری طرح سے غصہ ہوا تھا، جبکہ ابرش حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے مجھے نیچے تو اتاریں، اس کے بعد مجھ پر جتنا غصہ ہونا ہے ہو لیجیے گا، ابرش نے اس کی باہوں میں مچلتے ہوئے کہا۔ سمر یکدم ہی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور ابرش کو نرمی سے زمین پر اتارا۔ ابرش نے زمین پر گری ہوئی اپنی کیریوں کو دیکھا اور پھر سمر کو دیکھا، مگر سمر اسے جتنے غصے سے گھور رہا تھا، ابرش کی ہمت نہ ہو سکی وہ زمین پر گری ہوئی کیریوں کو اٹھا سکے۔ اگر تم ابھی اس درخت سے گر جاتی اور تمہیں چوٹ لگ جاتی تو؟ سمر نے سپاٹ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ سمر لالا، میں زمین ہی پر تو گرتی اور بس ذرا سا چوٹ لگتی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا، ابرش نے خفگی بھری نگاہوں سے سمر کو دیکھتے ہوئے کہا اور زمین پر بیٹھ کر اپنی کیریاں اٹھانے لگی۔ ابرش کی بات سن کر سمر نے ضبط سے گہرا سانس بھرا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میری ایک بات تم کان کھول کر سن لو، آئندہ کے بعد تم مجھے اس طرح سے اکیلے لان میں نظر مت آؤ۔ چوکیدار اور مالی بابا یہاں آنا جانا کرتے رہتے ہیں اور تم یہاں منہ اٹھا کر آ گئی، سمر نے اسے مخاطب کر کے سخت لہجے میں کہا۔ ابرش نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ دادی مجھے درخت پر نہیں چڑھنے دیتی، اس لیے میں ان سے چھپ کر آئی تھی، ابرش دھیمے لہجے میں منمنائی تھی، اور سمر نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آج ہی تمہاری دادی سے شکایت کروں گا تاکہ دادی آئندہ کے بعد دوپہر میں بھی تم پر نظر رکھ سکے، سمر نے زمین سے کیریاں اٹھا کر اس کے دوپٹے سے بنی ہوئی جھولی میں ڈالتے کہا۔
प्लीज समर लाला, आप दादी से मेरी शिकायत ना कीजिएगा। पहले ही वो मुझे हर बात में रोक टोक करती हैं और फिर वो मेरे यहाँ आने पर भी पाबंदी लगा देंगी। अब्रश ने समर की तरफ देखते मिन्नत भरे लहजे में कहा। समर ने उसकी बात सुनकर नफी में सर हिलाया। ये लड़की यकीनन कभी नहीं सुधर सकती। समर ने अपनी कलाई में पहनी बेशकीमत घड़ी में वक्त देखा। उसे ऑफिस जाने की देरी हो रही थी। वो किसी ज़रूरी काम से घर आया था और अब वापस जा रहा था जब उसकी नज़र दरख्त पर चढ़ी हुई अब्रश पर पड़ी थी। वो नफ़ी में सर हिलाता वापस जाने के लिए पलट गया, मगर उसके उनाबी होंठों के किनारों पर मुस्कुराहट टिकी हुई थी। क्या कहा? दोबारा बोलें, शायद मुझसे सुनने में कोई गलती हुई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत और बेयकीनी से मजीद फैल गई थीं और मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। अब्रश, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम इस तरह से सवाल कर रही हो? सारी ही लड़कियों की शादी होती है, वो अपने घरों की हो जाती हैं। अगर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो इसमें कोई ऐसी अजीब बात तो नहीं। अब्रश की दादी को उसका यूं हैरान होना एक आंख नहीं भाया जब भी उनके माथे पर बल नमूदार हुए और उन्होंने अब्रश को घूरते हुए नागवारी से कहा। अब्रश ने शिकायती नज़रों से अपनी दादी की तरफ देखा, जिन्होंने उसके हैरान होने पर उसे बुरी तरह से लताड़ दिया था। दादी, मैंने माना कि सारी लड़कियों की शादियां होती हैं, मगर किसी भी लड़की की शादी ऐसे इंसान से नहीं होती जिसकी पहली बीवी मर चुकी हो। ना बाबा ना, मैं समर लाला से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती। जिस तरह से उनकी पहली बीवी मर गई, मैं नहीं चाहती कि मैं भी उसी तरह से मर जाऊं। अब्रश ने बेख्तियार झुरझुरी लेते हुए कहा और उसकी बात सुनकर दादी ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो उसकी ज़बान के जौहर देखकर सख्त हैरान हुई थी, जबकि अब्रश के पीछे खड़े समर आफंदी ने अब्रश की बात सुनकर बेख्तियार ही अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। दादी ने भी घबराकर समर की तरफ देखा, मगर वो खामोश खड़ा रहा। अब्रश, क्या हो गया बेटा? कैसी बातें कर रही हो? उसकी पहली बीवी की मौत तबई थी, उसमें समर का क्या कसूर था? दादी ने अब्रश को झड़कते हुए कहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि अब्रश किसी भी तरह से खामोश हो जाए, मगर अब्रश तो आज अपनी ज़बान में धार लगवा कर आई थी। वो किसी भी सूरत खामोश होने का नाम नहीं ले रही थी। नहीं दादी, मैं आपको बताती हूँ, जब मुन्नज़ा भाभी समर लाला से शादी करके इस घर में आई थी तो वो बिल्कुल ठीक थी। आपको याद नहीं वो किस तरह से सबके साथ मिलजुल कर रहती थी, और फिर अचानक ही वो हम सबको छोड़कर चली गई। अब्रश ने सोफे पर बैठते हुए आलती पालती मारकर कहा, और साथ ही वो अपनी आंखों में ज़बरदस्ती आंसू भी ले आई थी। वो किसी भी तरह से दादी को इस बात पर माइल करना चाहती थी कि समर आफंदी से शादी करने के बाद उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए, जबकि दादी उसका मकसद बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। और समर आफंदी गुस्से और ज़ब्त से उस बेवकूफ़ लड़की की बातें सुन रहा था। दादी का बस नहीं चल रहा था कि वो अब्रश की बातों पर अपना माथा पीट डाले। बस दादी, मैंने कह दिया, मैं समर लाला से शादी नहीं करूँगी। अगर समर लाला की बीवी मर गई हैं तो क्या मैं भी मर जाऊं? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली। जाने किसने उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि समर से शादी करके वो भी मर जाएगी जिस तरह से उसकी पहली बीवी मरी है। समर इससे ज़्यादा इस बेवकूफ़ लड़की की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तेज़ी से अपनी जगह से आगे बढ़ा और अब्रश के सामने आ खड़ा हुआ। अपने सामने किसी पहाड़ जैसे वजूद को देखकर अब्रश ने नज़रें उठाकर देखा और अगले ही पल उसकी सीटी गुम हो गई। वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हुई। बोलते बोलते उसकी ज़बान को ब्रेक लग गए थे। दादी ने बेख्तियार ही अपना सर थामा। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शादी करके मर जाओगी? समर आफंदी ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए उसे सवाल किया और फिर पलटकर दादी की तरफ देखा। देखा दादी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे इस जैसी बेवकूफ़ लड़की से शादी नहीं करनी, मगर आप लोगों के सर पर तो मेरी शादी करवाने का भूत सवार है। मैंने पहले ही कह दिया है, मैं इस लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। समर आफंदी ने खा जाने वाली नज़रों से अब्रश को देखते हुए दादी से कहा था।
जबकि अब्रश के चेहरे पर हमाहियाँ उड़ने लगी। वो समर के पीठ पीछे उसके बारे में कितना भी बोल लेती, मगर समर के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। और अब भी ऐसा ही हुआ था। समर को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। समर बेटा, तुम गुस्सा मत करो, मैं इसे समझाऊंगी तो ये समझ जाएगी। तुम फिलहाल इसकी बातों पर ध्यान मत दो। दादी ने मौके की नज़ाकत देखते समर को शांत करवाना चाहा। समर ने कटीली निगाहों से अब्रश के झुके हुए सर को देखा, जो ज़मीन पर न जाने क्या ढूंढ रही थी। समर ने जब्त से ठंडी सांस भरी और फिर पलटकर वहां से चला गया। दादी, जब अब्रश मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? मेरी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकूंगा। समर ने अपनी दादी की तरफ देखते थके थके से लहजे में कहा, जिस पर दादी ने उसे तरहम भरी निगाहों से देखा। समर, तुम कब तक मुनज़्ज़ा के जाने का शोक मनाते रहोगे? मुनज़्ज़ा को इस दुनिया से गए 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मैंने तुम्हें एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, तो तुम कैसे अपनी खुशियों से मुंह मोड़ सकते हो? दादी ने नरम लहजे में अपने लाडले पोते को समझाने की कोशिश की थी, जो उनके सामने सोफे पर सर झुकाए खामोश सा बैठा था। ये समर आफंदी का दिल ही जानता था कि वो खुद पर किस तरह से ज़ब्त के पहरे बिठाए हुए है। उसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख होने लगी थी। लेकिन दादी, मैं यहाँ ही अब्रश की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, तो आपको भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी वो मुझसे पूरे 10 साल छोटी है, उसमें बहुत बचकानापन है। मैं उसकी ज़िद को और उसके नखरों को हैंडल नहीं कर सकता। आप भी मेरी बात समझने की कोशिश करें। समर ने नरम लहजे में दादी को समझाया था। समर की बात सुनकर दादी ने गहरी निगाहों से समर की तरफ देखा और एक गहरी सांस भरी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि अब्रश और समर की शादी करवाना उनके लिए इतना मुश्किल होगा। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अब्रश समर की दुल्हन बने, मगर जब समर ने उनके सामने मुनज़्ज़ा के लिए अपनी पसंद का इजहार किया था तो वो कुछ भी ना कह सकी थी। उनके लिए समर की खुशी अहम थी, इसीलिए उन्होंने समर और मुनज़्ज़ा की शादी के लिए हामी भर ली थी। मगर वो नहीं जानती थी कि समर और मुनज़्ज़ा का साथ महज चंद माह का लिखा हुआ था। एक रोज़ अचानक ही मुनज़्ज़ा की तबीयत ख़राब हुई। समर उसे फ़ौरन ही अस्पताल लेकर गया, मगर अस्पताल जाने तक वो दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टरों को भी उसकी मौत की वजह समझ नहीं आई थी और उस रोज़ से समर की ज़िंदगी में अंधेरों का राज था। उसने खुद को महज ऑफिस और अपने कमरे तक ही महदूद कर लिया था। खुशी की कोई किरण उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं थी। मुनज़्ज़ा की अचानक जुदाई ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि मुनज़्ज़ा उसे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। और अब मुनज़्ज़ा के इंतकाल के 2 साल बाद दादी ने दोबारा से अब्रश और समर की शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर अब्रश समर से शादी करने पर राज़ी नहीं थी। लेकिन दादी को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो इस शादी के लिए समर को राज़ी करना चाहती थी। समर, तुम अब्रश की फ़िक्र मत करो। मैं जानती हूँ इस शादी के लिए उसे कैसे राज़ी करना है। तुम अपनी मर्ज़ी बताओ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अब्रश तुम्हारी दुल्हन बने, मगर जब तुमने मेरे सामने मुनज़्ज़ा का नाम लिया तो तुम्हारी खुशी की खातिर मैं चुप हो गई। मगर आज जब मैं अपनी खुशी पूरी करना चाहती हूँ तो तुम अब्रश से शादी करने से इनकार कर रहे हो, दादी ने दुखी से लहजे में कहा। दादी की बात सुनकर समर ने पहलू बदला। दादी ने उसे घेर लिया था। वो चाहकर भी अब इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता था। वो अपनी दादी को कैसे दुख दे सकता था। समर ने एक गहरी सांस भरी। वो जानता था कि अब्रश से शादी करने के बाद उसे कदम कदम पर तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों के लाड प्यार ने उसे बुरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। मगर उसे अपनी दादी की ख्वाहिश भी अजीज़ थी। वो एक बार अपनी मर्ज़ी कर चुका था, अब मज़ीद अपनी दादी को दुख नहीं दे सकता था। इसीलिए उसे इस रिश्ते पर राज़ी होना ही था। ठीक है दादी, अगर आप इस रिश्ते से खुश हैं तो आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है।
मैं अब्रश से शादी करने पर राजी हूँ। समर ने थके थके लहजे में जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान सजाते कहा, मगर उसकी आंखों की जोत बुझ चुकी थी। उसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वो महज अपने से जुड़े रिश्तों की खातिर इस रिश्ते के लिए राजी हुआ है, वरना उसने कभी भी अब्रश को इस नज़र से नहीं देखा था। अब्रश उसके लिए हमेशा से एक छोटी बच्ची थी, मगर अब उन दोनों का रिश्ता तय होने जा रहा था। अब्रश की इस शादी से इनकार करने की वजह एक ये भी थी कि समर पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी मर चुकी थी। इस वजह से भी वो अब्रश से शादी नहीं करना चाहता था, मगर दादी उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही कब थी। समर ने भी दादी और बाकी घर वालों की खुशी की खातिर खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। अब्रश बड़ी मुश्किलों से इस निकाह के लिए राजी हुई थी, और वो भी इस शर्त पर कि वो शादी का जोड़ा अपनी मर्जी से लेगी। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब्रश को निकाह का जोड़ा उसकी पसंद से लेने की इजाज़त मिल गई। घर में सभी लोग बहुत खुश थे कि समर की ज़िंदगी दोबारा से बसने जा रही थी, वरना मुनज़्ज़ा के इस दुनिया से जाने के बाद उसने खुद को बिल्कुल ही अकेला कर लिया था। अब्रश दुल्हन बनी समर के कमरे में मौजूद थी। उसके निकाह से पहले बहुत सी वीडियोस देखी कि वो निकाह के बाद खुद को हिफाजत कैसे कर सकती है। वो कमरे के बीचों बीच आकर बैठ गई। निकाह का सफ़ेद जोड़ा भी उसने इसीलिए पसंद किया था ताकि वो सफ़ेद जोड़े में ये सब कर सके। समर निकाह के बाद कमरे में आया तो कमरे का मंजर देखकर उसे बुरी तरह से झटका लगा। वो बेयकीनी से आंखें फाड़े सामने का मंजर देखने लगा। अब्रश ने पूरे कमरे में मोमबत्तियां जलाई हुई थी और बाल खोले बैठी कोई विर्त कर रही थी। उसने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया था। समर को अपने सामने देखते ही उसने समर पर गुलाब के फूलों की पत्तियां फेंकी थी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ना चाहते हुए भी अब्रश को यूं देखकर समर का सर घूम कर रह गया। अब्रश ने विर्त करते हुए समर की तरफ देखा। देखो समर की पहली बीवी, तुम कैसे मरी थी, मैं वैसे नहीं मरना चाहती। अब्रश ने दोनों हाथ फजा में उठाते हुए कहा। यहाँ आकर समर के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया। उसने आगे बढ़कर अब्रश को बाजुओं से थामा और उसे झटके से अपने सामने खड़ा किया। ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम? समर ने ज़ब्त से लब भेंचे उसे सवाल किया। समर को इस कदर गुस्से में देखकर अब्रश की सीटी गुम हो गई। अब्रश के गले की गिल्टी सी उभरी। बहुत शौक है ना तुम्हें उसे बुलाने का? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें भी उसी के पास भेज देता हूँ। समर ने सर्दो सपाट लहजे में अब्रश की आंखों में झांकते हुए कहा। समर की बात सुनकर अब्रश की आंखें फैल गई। समर ने गुस्से में उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे मजीद अपनी जानिब घसीटा। उसकी इस हरकत पर अब्रश सांस तक रोक गई थी। जब समर ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, उसने अगले ही पल खुद को समर की बादामी आंखों की गहराइयों में उतरते महसूस किया। समर के दिल को कुछ हुआ था। ये शायद निकाह की वजह थी, उसके सामने हलाल रिश्ते की। उसकी बीवी जुड़ी मौजूद थी तो आकर उसके सामने दिल कैसे ना हारता। समर को एकदम ही अपनी कैफियत अजीब होती महसूस हुई। अब्रश की आंखों में नमी सी उभरी। समर ने आहिस्तगी से अब्रश के बाजुओं को छोड़ा और अब्रश सहमती हुई उससे चंद कदम दूर हो गई। ये सब कुछ समेटो और आइंदा मुझे ऐसी कोई हरकत करती नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अपने दिमाग से ये खन्नास निकाल दो कि मेरी वजह से मुनज़्ज़ा इस दुनिया से गई है। मैंने मुनज़्ज़ा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर शायद उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी कि वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं आज भी मुनज़्ज़ा से मोहब्बत करता हूँ और उसकी जगह तुम कभी नहीं ले सकती। इसलिए आइंदा के बाद ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मेरे सामने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समर ने अब्रश को बाजुओं से दोबारा से थाम कर झंझोड़ते हुए कहा। समर के मुंह से इस कदर तल्ख बातें सुनकर अब्रश की आंखों में आंसू आ गए, जबकि समर अपनी दिली कैफियत से बेचैन सा हो गया। उसका दिल अब्रश की खूबसूरती के जानिब माइल होने लगा था और उसे लग रहा था अगर वो अब्रश की जानिब माइल हो गया तो ये मुनज़्ज़ा की यादों के साथ ज़्यादती होगी।
اس لیے اس نے اپنی ساری جھنجھلاہٹ ابرش پر اتار دی۔ وہ ابرش کو چھوڑ کر اس سے دور ہوا اور اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا اور گہری سانس بھر کر خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہارے ذہن میں کس نے ڈالی ہے کہ منزہ کی موت میری وجہ سے ہوئی؟ سمر نے سپاٹ اور خشک لہجے میں اس سے سوال کیا اور سنجیدہ نگاہیں ابرش کے چہرے پر ٹکا دی۔ ابرش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے بھی سمر نے کئی بار اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس سے سخت لہجے میں بات کی تھی، مگر آج جانے کیا بات تھی کہ ابرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابرش نے زخمی نظروں سے سمر کی طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ بھی نہ بولی۔ اب منہ بند کر کے کیوں کھڑی ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ ویسے تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے، اب کیوں بولتی بند ہو گئی؟ بتاؤ، کس نے تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ منزہ میری وجہ سے مری ہے؟ سمر نے اس کے چہرے پر نظریں جمائی، ایک ایک لفظ پر زور دیتے سوال کیا۔ وہ جب منزہ بھابھی کا انتقال ہوا تھا، کچھ عورتیں باتیں کر رہی تھیں، میں نے ان کی باتیں سنی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کچھ تو ضرور ہوا ہے، ورنہ ایسے کون اس دنیا سے جاتا ہے؟ ابرش نے سر جھکائے اسے ساری بات بتا دی۔ سمر نے بے اختیار ہی گہری سانس بھری۔ پتہ نہیں کن عورتوں کی باتیں سن کر ابرش ان کی باتوں پر یقین کر بیٹھی تھی۔ دیکھو ابرش، یہ بات میں تمہیں آخری بات بہت نرمی سے سمجھا رہا ہوں۔ میں منزہ سے بہت محبت کرتا تھا، میں نے اس سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، میں اسے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تم بھی یہ بات سمجھ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ مجھے اپنے طریقے سے سمجھانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ سمر نے سرد لہجے میں اسے وارننگ دی اور الماری کی جانب بڑھ گیا اور اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا تھا، کیونکہ ابرش نے اسے اداس نظروں سے جاتا دیکھا۔ ابرش اور سمر کی شادی کو محض 2 دن ہی ہوئے تھے جب سمر کو کسی ضروری کام سے دوسرے ملک جانا تھا۔ اس نے رات کے کھانے پر سب کو آگاہ کیا تھا کہ وہ کل صبح جا رہا ہے اور اس کی واپسی تقریباً 15 روز بعد ہوگی۔ دادی نے ابرش کے بجھے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ آج 2 دنوں میں انہیں ابرش کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ دکھائی نہیں دی تھی، وہ بجھ سی گئی تھی۔ سمر، تمہیں اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ابرش کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابھی پرسوں ہی تو تم دونوں کا نکاح ہوا اور آج تم جانے کی بات کر رہے ہو۔ دادی کو سمر کا یوں اچانک جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ سمر نے سر اٹھا کر ابرش کی طرف دیکھا جو اس سے بالکل انجان سی کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ لیکن دادی، مجھے صبح ہی کل وہاں پہنچنا ہے، میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے، اور اتنی جلدی ابرش کے جانے کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی تو اس کا پاسپورٹ بھی موجود نہیں، میں اگلی بار اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سمر نے ابرش کے چہرے پر نظریں جمائے نرمی سے کہا۔ اسے خود بھی ابرش کا یہ خاموش سا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس روز کے بعد سے ان دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سمر کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی ابرش سو جاتی تھی، اور پھر جب صبح سمر کی آنکھ کھلتی تو ابرش کمرے میں موجود ہی نہیں ہوتی تھی۔ سمر نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ شاید وہ اپنے نکاح کی رات اس سے کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا، مگر ابرش نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ سمر نے اپنے جانے کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی، مگر ابرش اب تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ سمر اسی کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابرش کمرے میں آئی۔ سمر اس وقت بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ابرش، سمر نے ابرش کو مخاطب کیا۔ ابرش نے بیڈ کی طرف بڑھتے سوالیہ نظروں سے سمر کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنی خاموش ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، یا اگر تمہیں میرے اس طرح سے اچانک جانے کا برا لگا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ سمر نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھنے کی کوشش کرتے کہا۔ ابرش نے سنجیدہ نظروں سے سمر کی طرف دیکھا۔ آپ کے کہیں بھی جانے سے مجھے کیوں کوئی مسئلہ ہوگا؟ ابرش نے سمر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے الٹا اسی سے سوال کیا، اور اس کا جواب سن کر سمر نے بھی اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اور میرا خاموش رہنا آپ کا مسئلہ تو ہرگز بھی نہیں ہے۔
अब्रश ने नाराज से लहजे में कहा। उसकी बातें सुनकर समर के माथे पर बल नमूदार हुए। उसने गुस्से से अब्रश की तरफ देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने बैठी लड़की इस कदर बदतमीज होगी, मगर इस वक्त समर ने खुद पर जब्त किया था। वो नहीं जानता था कि अब्रश का रवैया उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, जबकि अब्रश सर झटकती हुई बेड की दूसरी जानिब आकर बैठी और अपना दुपट्टा उतार कर साइड में रखा और अपने चेहरे तक कंफर्टर तान कर लेट गई। समर ने बहुत खामोशी से उसे देखा था। अब्रश की इन्हीं हरकतों की वजह से वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अब्रश का बचपना कभी ख़त्म नहीं होगा, और हो भी वही रहा था। अब्रश ने अपने और उसके ताल्लुकात को बढ़ने का एक भी मौका फराहम नहीं किया था। शादी की रात भी अब्रश ने ऐसी बातें करके समर का दिमाग घुमा दिया था, और आज जब समर उसकी जानिब कदम बढ़ाना चाहता था, अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहता था, तो अब्रश ने उसे बोलने का मौका ही ना दिया और अपने खुश्क रवैये से बात वहीं ख़त्म कर दी। समर को उसका यूं उखड़ा उखड़ा सा रवैया कुछ समझ ना आ सका। वो काफ़ी देर तक उसके कंबल में लिपटे वजूद को देखता रहा और फिर ठंडी सांस भरकर खुद भी लेट गया। वो अब्रश की मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाकर वहीं नींद दराज हो गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो हर लम्हा एक अनदेखी आग में जल रहा था। वो अब्रश से बात करना चाहता था, उसके सारे डर ख़त्म करना चाहता था, मगर शायद वो इस वक्त बात करने के मूड में हरगिज़ नहीं थी। इसीलिए वो सारी बातें सोचता हुआ नींद की वादियों में उतरता चला गया। समर को गए 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में वो रोज़ ही अब्रश को फ़ोन करता, मगर अब्रश उसका फ़ोन नहीं उठाती थी। मगर फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ ही उसे फ़ोन करता। उसे अब्रश की नाराज़गी की वजह समझ नहीं आ रही थी। वो आखिरकार क्यों उससे इतनी दूर और खिंची खिंची से रहने लगी थी। अब्रश, यार मेरी कॉल तो उठाओ कम अज़ कम। मैं पिछले 1 हफ्ते से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मगर तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही। कम अज़ कम मेरा मैसेज सीन करके मुझे रिप्लाई ही दे दो। समर ने अब्रश के नंबर पर मैसेज किया। उस वक्त अब्रश अपने कमरे से मुल्हिक बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी थी। उसने मैसेज खोल कर देखा था और सामने ही समर का नाम जगमगा रहा था। अब्रश ने मैसेज खोल कर देखा। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। क्या आपको मेरा ख्याल है? अब्रश ने एक छोटा सा सवाल लिखकर समर के नंबर पर सेंड कर दिया। अगले ही लम्हे समर के मोबाइल की टोन बजी। अब्रश का सवाल सुनकर उसके होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। अगर मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है तो किसका ख्याल है? मैं 1 हफ्ते से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम हो कि मेरी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही। समर ने मैसेज पर ही शिकवा किया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसका फ़ोन नहीं उठाएगी। अब्रश ने नम नज़रों से उसके मैसेज को देखा। आपको मैं याद भी हूँ? हैरत है। अब्रश ने कंधे उचकाते हुए मैसेज टाइप किया और सेंड का बटन दबा दिया। मुझे तुम्हारे सिवा और कौन याद होगा? ये अलग बात है कि तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। समर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मैसेज टाइप किया। उसका मैसेज पढ़कर अब्रश ने एक गहरी सांस भरी। मैंने आपको नज़रअंदाज करने के लिए आपसे शादी नहीं की थी, मगर ये बात तय है कि आपने मुझे नीचा दिखाने के लिए ज़रूर मुझसे शादी के लिए हामी भरी थी। जाने क्यों मैसेज टाइप करते अब्रश की आंखें जलने सी लगी। उसका मैसेज देखकर समर अपनी जगह पर सीधा होकर बैठा। उसे हैरत हुई थी कि अब्रश ऐसा क्यों सोच रही थी। उसने तो कभी अब्रश को नीचे नहीं दिखाया था, फिर उसकी सोच वहां क्यों गई? अब्रश, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें क्यों नीचा दिखाऊंगा? समर ने हैरानी से सवाल किया, मगर अब्रश की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे शादी की रात की गई समर की सारी बातें याद आने लगी। समर ने उसके सामने ही कहा था कि वो मुनज़्ज़ा से मोहब्बत करता है, और ये बात अब्रश के दिल पर लगी थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिरते जा रहे थे। समर उसके जवाब का इंतज़ार करता रह गया, मगर अब्रश ने उसके आगे कोई बात ना की। अब्रश किचन में मसरूफ़ थी। आज समर वापस आ रहा था।
दादी ने अब्रश से कहा था कि वो आज समर की पसंद का सारा खाना बना ले। अब्रश खामोशी से किचन में चली आई। बिरयानी के लिए मसाला चढ़ाकर वो कोरमा बनाने लगी। इसी असना में नाजिश किचन में आई। अब्रश ने नजरें उठाकर एक अचपटी सी निगाह उस पर डाली। नाजिश अब्रश की पुप्पो की बेटी थी। वह हमेशा से ही समर से शादी करना चाहती थी, मगर समर को मुनज़्ज़ा पसंद थी, इसीलिए समर ने उससे शादी कर ली। और मुनज़्ज़ा के जाने के बाद भी उसने नाजिश से शादी करने से इनकार कर दिया था और अब्रश से शादी करने की हामी भर ली थी, क्योंकि वो नाजिश की आदतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था। इसी वजह से उसने नाजिश से शादी करने की हामी नहीं भरी थी, क्योंकि नाजिश ने कई बार मुनज़्ज़ा और समर के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की थी। मुनज़्ज़ा समझदार थी, उसने कभी नाजिश की बातों पर गौर नहीं किया था, मगर अब उसके सामने अब्रश थी। वो नाजुक से दिल की लड़की थी, वो इस तरह की चालाकियों को कैसे समझ सकती थी। नाजिश उसके सामने आकर खड़ी हुई। अब्रश, तुम समर के साथ नहीं गई? तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, उसकी दूसरी शादी है, तो क्या तुम्हारी तो पहली शादी है? तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था। यही तो वक्त होता है एक दूसरे को समझने का, बाद में तो वक्त ही नहीं मिलता, और वो तुम्हें ही अकेला छोड़कर चला गया। नाजिश ने अपने चेहरे पर मसनूई हमदर्दी सजाते हुए अब्रश से कहा। अब्रश ने नजरें उठाकर नाजिश की तरफ देखा। मेरा पासपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकी। अब्रश ने उसे मुख्तसर सा जवाब दिया। वो नहीं चाहती थी उन दोनों के दरमियान के इख्तलाफात को किसी को भी इल्म हो, इसलिए उसने नाजिश के सामने समर की हिमायत की थी। अब्रश की बात सुनकर किचन में ही नाजिश की हंसी गूंजी। ये तो समर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, वरना जब मुनज़्ज़ा घर में शादी करके आई थी तो शादी के अगले ही दिन समर ने उसके लिए पासपोर्ट बनवा दिया था और उसी हफ्ते लेकर उसे हनीमून पर भी चला गया था, मगर तुम्हें तो उसने पूछा भी नहीं। नाजिश के होंठों पर एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। अब्रश ने ज़ब्त से उसकी तरफ देखा। मुनज़्ज़ा भाभी इस दुनिया से जा चुकी हैं, इसलिए बेहतर है कि उनके बारे में बात ना की जाए। अब्रश ने खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे बिठाए हुए सपाट लहजे में कहा। तुम्हारी मुनज़्ज़ा भाभी इस दुनिया से जा चुकी हैं, मगर तुम्हारे शौहर के दिल से नहीं गई, और ये बात तो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गई होगी। नाजिश ने उसकी दुखती रग पर पाँव रखा था। अब्रश की आंखों में आंसू आए थे, मगर वो उसके सामने अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो अपना रुख मोड़ गई। मैंने तो ये भी सुना है कि समर के दिल से आज तक मुनज़्ज़ा का ख्याल नहीं गया। पता नहीं वो कैसे तुम्हें अपनी बीवी के रूप में कबूल करेगा। नाजिश ने कंधे उचकाते हुए कहा और तंजिया नज़रों से मुस्कुराते हुए अब्रश की पुश्त की तरफ देखा और फिर किचन से निकल गई। उसका काम पूरा हो गया था। उसकी लगाई हुई आग ने यकीनन भड़क जाना था। अब्रश बच्चे, क्या हो गया है? जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ तुम बहुत खामोश सी हो गई हो। अब ना तुम हंसती खेलती हो, ना ही पहले की तरह शरारतें करती हो। अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो, और अगर समर ने कुछ कहा है तो वो भी मुझे बता सकती हो। वो आ जाए तो मैं उसके ज़रूर कान खींचूंगी। दादी ने अब्रश के सादा से हुलिये पर गौर से देखते हुए कहा। अब्रश ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ दादी को देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्रश ने उन्हें तसल्ली दी और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। तो बेटा तुम नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर क्यों नहीं रहती? क्यों इतना फीका सा रंग पहना हुआ है? हाथों में चूड़ियां हैं और न गले में कुछ डाला है। जाओ, आज तुम्हारा शौहर इतने दिनों बाद घर आ रहा था, कोई खिला हुआ सा रंग पहनो और जेवर पहन कर आओ। इस तरह से शौहर के सामने आओगी तो उसका दिल कैसे खुश होगा? दादी ने नरम लहजे में अब्रश को समझाते हुए कहा। अब्रश ने थकी थकी नज़रों से दादी की तरफ देखा। दादी, समर की शादी तो ज़बरदस्ती मेरे साथ हुई है। मैं मुनज़्ज़ा भाभी की तरह उनकी मनपसंद बीवी थोड़ा ही हूँ, तो मैं तैयार होकर क्या करूँगी? अब्रश अपनी हथेलियों में जाने क्या तलाश कर रही थी। अब्रश बेटा, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या समर ने तुमसे कुछ कहा है?
दादी का दिल उसकी बातें सुनकर हौल गया था। अब्रश खामोश रही थी, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। दादी ने उसकी खामोशियों को नोट कर लिया और उसकी आंखों में छुपे आंसू भी दादी की नज़रों से छुपे ना रह सके थे। अच्छा जाओ बेटा, तुम जाकर तैयार हो और अच्छा सा तैयार होकर नीचे आओ, तुम्हारा शौहर आने वाला है, दादी ने अब्रश को मोहब्बत से पिचकारते हुए कहा। और वो इस बात में सर हिलाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो खामोशी से अपने कमरे में आई और अपनी अलमारी खोलकर खड़ी हुई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। उसने एक नज़र सामने आईने में खुद को देखा। उसने सुरमई रंग का लॉन का एक सादा सा सूट पहन रखा था। बाल जोड़े की शक्ल में गोल मोल से लेपटे हुए थे। चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी था। उसने अपना हुलिया देखकर एक गहरी सांस भरी और फिर पलटकर अलमारी में से एक मैरून रंग का जोड़ा निकाला और शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद वो निखरी निखरी से बाहर आई थी और आईने के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाने लगी थी। उसने अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया और गीले बालों को कमर पर खुला छोड़ दिया। वो तैयार हो चुकी तो नीचे चली आई। अभी वो दादी के बराबर में जाकर बैठी ही थी जब लॉन में गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। दादी ने मोहब्बत भरी निगाहों से अब्रश की तरफ देखा। वो अपनी जगह कुछ झेम सी गई थी। समर अंदर आया तो लाउंज में सभी लोग जमा थे, मगर उसकी नज़रें तो अब्रश की तलाश में थी और अब्रश उसे दादी के बराबर में बैठी दिखाई दी, मगर वो समर की तरफ देख भी नहीं रही थी। समर ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसे अब्रश सीधी अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। अब्रश ने सब कुछ बहुत दिल से बनाया था। समर ने इतने दिनों बाद घर का खाना खाया था। आज खाना बहुत अच्छा बना है, समर ने मीठा कटोरी में निकालते दिल से तारीफ की। आज सारा खाना अब्रश ने बनाया है, दादी ने मोहब्बत से अब्रश की तरफ देखते कहा, जो खामोशी से सर झुकाए खाना खा रही थी। समर ने मोहब्बत भरी नज़रों से अब्रश के झुके हुए सर को देखा। रात का खाना खाने के बाद सभी लोग आराम करने की गर्ज से अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि अब्रश कॉफ़ी बनाने किचन में आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि समर को रात को कॉफ़ी पीने की आदत है। अब्रश कॉफ़ी बनाकर कमरे में गई तो समर सोफे पर नीम दराज था। अब्रश ने कॉफ़ी उसके सामने रखी और पलटकर बेड की तरफ जाने लगी। समर अपनी जगह से खड़ा हुआ और नरमी से अब्रश का हाथ थाम लिया। अब्रश ने पलटकर समर की तरफ देखा। चंद लम्हों के लिए दोनों की निगाहें टकराईं। अब्रश ने उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर समर ने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर दी। अब्रश की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुकाबिल के सामने रोकर अपने आंसुओं को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मगर वो बददस्तूर उसे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और समर इत्मीनान से उसकी इन कोशिशों को देख रहा था। हाथ छोड़े मेरा, अब्रश ने भीगे हुए लहजे में कहा। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा, समर ने उसके सामने खड़े होते कहा और एक झटके से उसे अपने करीब खींचा। चंद लम्हों के लिए अब्रश के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। क्यों दूर जाने की कोशिश कर रही हो मुझसे? समर ने अब्रश की आंखों में देखते हुए उसे नरम लहजे में सवाल किया और एक हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। अब्रश ने जख्मी नज़रों से समर की तरफ देखा। उसे नाजिश की गई सारी बातें याद आई थीं। उस वक्त तो नाजिश की नज़रों में अपनी इज्जत रखने की खातिर उसने झूठ का सहारा लिया था, मगर दिल ही दिल में उसे भी इस बात का यकीन हो चला था कि समर उससे मोहब्बत नहीं करता। अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे तो मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? दादी को इनकार कर देते तो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती थोड़ा ही कर सकता था, अब्रश ने रोंदे हुए लहजे में कहा। अच्छा, तुम भी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो तुम इनकार कर देती, समर ने उसकी बात पर महसूस होते हुए कहा। मैंने इनकार किया था, मगर किसी ने भी मेरे इनकार को अहमियत नहीं दी और ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। अब्रश की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।
समर ने उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़ब्त से उसकी तरफ देखा, मगर वो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो अब्रश के दिल की बात सुनना चाहता था, इसीलिए उसने उसकी कड़वी कसीली बातों पर ज़ब्त करते हुए उसे बोलने का मौका दिया। क्या तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? समर ने उसकी गालों पर टिके हुए आंसुओं को नरमी से अपनी पोरों पर चुनते हुए कहा, मैं आपसे शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि आप आज भी मुनज़्ज़ा भाभी से मोहब्बत करते हैं। आपकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, अब्रश ने सिसकते हुए कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? समर ने रोती हुई अब्रश को नरमी से अपनी बाहों के हिसार में कैद किया। आपने ही शादी की रात मुझसे कहा था कि आप मुनज़्ज़ा भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे, अब्रश ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर समर ने एक ठंडी सांस भरी। देखो अब्रश, जिस तरह से तुम्हारे लिए इस रिश्ते को कबूल करना मुश्किल था, वैसे ही मेरे लिए भी इस रिश्ते को कबूल करना मुश्किल था। और ऐसे में तुम्हारे जहन में ये बात थी कि मुनज़्ज़ा मेरी वजह से इस दुनिया से गई है। चंद लम्हों के लिए तुम खुद सोचो, मुझे इस बात से कितनी तकलीफ पहुंची होगी कि मेरी बीवी की मौत का इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है, जो अब इस दुनिया से जा चुकी है। समर ने उसे नरम लहजे में समझा रहा था, जबकि अब्रश ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे समर के लहजे में छुपा हुआ दुख साफ महसूस हो रहा था। अब्रश के दिल को कुछ हुआ। मुनज़्ज़ा मेरी बीवी थी, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर वो अब इस दुनिया से जा चुकी है, और यही मेरी ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत है। मैं चाह कर भी इस तल्ख़ हकीकत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैंने बहुत अरसे से इस हकीकत से भागने की कोशिश की थी, मगर मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। तो मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया, और इस हकीकत को कबूल करने के बाद ही मैंने तुमसे निकाह किया था। और ये भी सच है कि तुम मेरी बीवी हो, मेरा हाल हो, मेरा मुस्तकबिल हो। मैं चाह कर भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता, तुम्हारे वजूद से निगाहें नहीं चुरा सकता। तुम मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा सच हो जिसे मैंने दिलो जान से कबूल किया है, समर ने बोझल लहजे में कहा। वो जैसे अब खुद से भागते भागते थक सा गया था। वो अब रुक जाना चाहता था, किसी मुकाम पर ठहर जाना चाहता था। आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए, मुझे अकेला छोड़ गए। आप चाहते तो मुझे भी अपने साथ ले जा सकते थे। अब्रश ने अपने दिल में छुपा शिकवा अपनी ज़बान पर ले आई। समर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरे साथ जाना था तो एक बार तो मुझसे कहती। समर ने उसकी सभी चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लेते कहा, मैं आपसे क्यों कहती? मुनज़्ज़ा भाभी को भी तो आप अपने साथ लेकर गए थे। अब्रश ने शिकवा किया था। समर समझ गया था कि ये सब अब्रश की ज़बान नहीं है। ये सारी बातें तुमसे किसने कही हैं? समर ने खोजते हुए लहजे में सवाल किया। ये सारी बातें मुझसे नाज़िश आपी ने कही हैं, अब्रश ने मासूमियत से जवाब दिया। और समर ने एक ठंडी सांस भरी। देखो अब्रश, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो, मगर तुम आइंदा खुद का और मुनज़्ज़ा का मुकाबला नहीं करोगी। अगर तुम इसी तरह से करती रही तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भरने की भरपूर कोशिश करूँगा, मगर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। समर ने उसकी बादामी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। अब्रश ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तुम आइंदा किसी की बातों में नहीं आओगी। तुम्हें जो भी शिकायत होगी तुम मुझसे कहोगी। वो नरमी से उससे वादा ले रहा था। अब्रश ने इस बात में सर हिला दिया। समर ने उसे मज़ीद अपने करीब किया। यकदम ही अब्रश को अंदाज़ा हुआ कि वो समर के बेहद करीब है। अब्रश ने उससे दूर जाने की कोशिश की थी, मगर समर ने दोनों हाथों से उसकी नाजुक सी कमर को थामा। आज तो मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो,
समर ने जज्बात से बोझल लहजे में कहा। यकदम ही अब्रश के चेहरे पर हया की लाली सी बिखर गई। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। अब्रश को यूं शर्माते देखकर समर मुस्कुराया था और फिर उसने अब्रश के माथे पर बोसा दिया। अब्रश शर्म से दोहरी होती उसके सीने से लगी थी।